A lot of CAs I know come from humble backgrounds and middle class families. The reason is pretty simple. The total cost of CA course including all the coaching fees and registration fees is 3 to 3.5 lakh rupees. And the average package one can expect is rupees 9 lakhs per annum, which is a very good return on investment as compared to the fees which we are going to pay in the CA curriculum. Now coming to the topic of additional sources of income which people can earn while doing articleship, right? A lot of CA students ask me that apart from articleship, what is something that we can do in order to ensure that we are also having some additional source of income and we are also able to support our families if needed. And in this video, I am going to break down all the side hustles that you can possibly do while doing your articleship. At the same time, इसका ये मतलब नहीं कि आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होगी, बट ये ऐसे साइड हसल्स है जहां पर आपको एफर्ट बहुत कम देना है, बट एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी. सो दिस वीडियोस पर्पस इज जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि ऐसे साइड हसल्स पॉसिबल है. एट द सेम टाइम दिस वीडियो डज नॉट मीन इन एनी मैनर कि आप आपकी पढ़ाई छोड़ के ये सब साइड हसल्स ही करने वाले हो. ओके, सो दैट्स द डिस्क्लेमर व्हिच आई वांट टू गिव टू ऑल ऑफ यू. नंबर 1 इज फाइनेंस कंटेंट राइटिंग. मैं बताता हूँ आपको बहुत सारे फिनटेक एडटेक स्टार्टअप्स है लाइक क्रेड, अनअकैडमी, ग्रो, अपस्टॉक, जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग एंड अ लॉट ऑफ दीज स्टार्टअप्स आर देयर who are always on the lookout of finance content writers for their social media handles or for all the blogs which they are writing. Blogs का मतलब क्या होता है? अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो एक ब्लॉग्स का सेक्शन होता है जहां पर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं. दिस इन्फॉर्मेशन वुड बी कि टैक्स कैसे सेव करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पढ़ना है एंड ऑल ऑफ दैट. एवरी पर्टिकुलर कंपनी इज गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉग्स आइदर ऑन देयर वेबसाइट और ऑन देयर लिंक्डइन हैंडल. लिंक्डइन पे भी सारे कंपनीज कंटेंट लिखती है जहां पर वो एंश्योर करती है कि उनकी ऑडियंस को वो एजुकेट कर रही है ऑन like personal finance, mutual funds, real estate investment trust, money management and all of that. तो इनको बहुत जरूरत होती है finance content writers, and who better than us who are chartered accountants can help them in writing the best finance content because we are already taught all these things in our CA curriculum. And you'll be shocked to know कि आपके skills के basis के हिसाब से you can charge anywhere between 15,000 to rupees 25,000 per month for writing let's say 15 to 20 posts per month for all these brands itself. I'll give you a very simple example, right? I'm also working with a lot of CA article assistants who help me with my content writing and content research. In fact, one of my very close friends, he also hired some article assistants of CA and he used to pay them 15,000 per month just so that they can write 3 reel scripts per week, which is 12 reel scripts per month. तो 12 scripts के लिए वो उसको 15,000 रुपए देता था. On an average rupees 1,000 per script का charges when you are able to give that quality of content in those scripts itself. And ये scripts बहुत कम होती है, like Insta Reels के लिए on an average 100 to 150 words की scripts होती है which you can give to all these content creators. And आपको पता है कि content creation तो boom हो ही रहा है. Content creators are on the rise and every single day I'm seeing some of the other new creator who is creating content on either YouTube, Instagram or LinkedIn. Reach out to them, cold DM them on Instagram or send them a message on LinkedIn or email them and try to just tell them that you are the best person to do this work for them. And ये बहुत low effort है because आप तो यही articleship में कर रहे हो, आप यही CA के curriculum में पढ़ भी रहे हो, so आपके लिए बहुत easy होगा to earn this additional source of income. In fact मैं आपको एक और insight देता हूँ, right? अगर आप ये clients के लिए काम करोगे और आपका काम बहुत अच्छा है, right? तो आप rupees 2 to rupees 4 per word भी charge कर सकते हो for any particular script or any particular assignment which you are going to take. So for example अगर आप let's say LinkedIn post लिखते हो, LinkedIn post 300 वर्ड्स का होता है, अगर आप रुपीस 4 पर वर्ड भी चार्ज करते हो तो 1200 रुपए पर लिंक्डइन पोस्ट आप चार्ज कर सकते हो. अज्यूमिंग आप 10 लिंक्डइन पोस्ट करते हो हर महीने तो 12,000 पर मंथ की आपकी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से ही हो गई. दिस इज द इंडस्ट्री एवरेज विच पीपल कैन चार्ज फॉर फाइनेंस कंटेंट राइटिंग. आई नो लॉट ऑफ दीज ब्रांड्स हु आर ऑलवेज ऑन द लुकआउट ऑफ फाइनेंस कंटेंट राइटर्स एंड मेरे को हमेशा ये ब्रांड्स के मैसेजेस आते हैं कि आपको कोई सीए पता है या आपको कोई ऐसा बंदा पता है जो हमको हमारी फाइनेंस कंटेंट राइटिंग में हेल्प कर सकता है, बिकॉज फाइनेंस बहुत नीश है एंड देयरफॉर दीज ब्रांड्स प्रेफर पीपल हु हैव डन सीए और सीएफए और एसीसीए और दीज फाइनेंस कोर्सेज बिकॉज इनको पता है कि इनके पास टेक्निकल नॉलेज तो डेफिनेटली होगा ही होगा. नाउ द सेकंड पार्ट इज फाइनेंस रिसर्चिंग, राइट? तो अभी रिसर्चिंग में फर्क क्या होता है? कंटेंट राइटिंग में आपको पूरा स्क्रिप्ट लिखना होगा, आपको पूरा एंश्योर करना होगा कि आपने वर्ड टू वर्ड एक स्क्रिप्ट लिखा है. बट अगर आप रिसर्च में जाते हो, रिसर्च असिस्टेंट बनते हो, आपको ऑन एवरेज यहाँ पर 10,000 to 12,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा एंड आपको बस उनको रिसर्च करके देना है कि कौन से टॉपिक आइडियाज पे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं. एंड अगर आपने वो टॉपिक आइडिया दिया और स्क्रिप्ट अप्रूव हो गया तो आपको उसमें बेसिकली रिसर्च करके देना है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू टॉक अबाउट सेक्शन 54F की, ओके, टैक्स एग्जेम्पशन होता है कैपिटल गेन्स में, तो आपको रिसर्च करके देना है कि ओके कौन से केसेस में टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, कितना का टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, कौन से सेक्शन में ये आता है एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ समवन हु वांट्स टू अवेल एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 54F एटसेट्रा. तो बहुत सारी ब्रांड्स है, अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे, अगर आप ग्रो के वेबसाइट पे जाओगे, जीरोदा वार्सिटी पे जाओगे, बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको टैक्स सेविंग्स या तो बहुत सारे वेबसाइट पे आपको ये पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आंसर्स देने पड़ते हैं. सो ऑल दीज ब्रांड्स आर लुकिंग फॉर फाइनेंस एक्सपर्ट्स और फाइनेंस रिसर्चर्स हु कैन हेल्प देम इन ऑर्डर टू ड्राफ्ट दोज काइंड ऑफ आंसर्स एज वेल. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स रिसर्च असिस्टेंट्स हायर करते हैं एट 15,000 to 20,000 पर मंथ, जिनका काम ही पूरा होता है कि ओके एक वीडियो अगर बनाना है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो कौन से म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है, तो रिसर्चर का पूरा काम ही होगा कि ओके म्यूचुअल फंड स्काउट करो, उनके 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर रिटर्न्स देखो एंड पूरा उनको अच्छे से एक्सप्लेन करो टू द कंटेंट क्रिएटर सो दैट ही कैन एक्सप्लेन इन द वीडियो विच इज गोइंग टू बी देयर. सो फाइनेंस रिसर्चर इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू अर्न एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पीपल हु आर एट लेट्स से 400K 500K फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, दे एनीवेयर पे बिटवीन 40 to
to 50,000 per month also for full time researchers. इनका काम ही होता है कि रिसर्च करो एंड पूरा थॉरो रिसर्च करो. एंड बाय रिसर्च आई डोंट मीन कि इनको सिर्फ रीडिंग करना है, इनको सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखना है. बाय रिसर्च आई ऑल्सो मीन कि इनको बात करनी है लोगों से, इनको रीच आउट करना है लोगों को, कॉल्स करने हैं लोगों के साथ 30-30 मिनट्स की, अंडरस्टैंड करना है कि ओके मार्केट इनसाइट्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक वीडियो बनाया कि एमबीए में लाइफ कैसी होती है IIM अहमदाबाद में, तो 3-4 IIM अहमदाबाद के बंदों से बात करनी है, समझना है कि उनकी लाइफ कैसे होती है, क्यों उन्होंने एमबीए किया, एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, लोएस्ट पैकेज क्या है. बिकॉज पीपल हु आर ऑलरेडी इन द कैंपस दे आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स. एंड ये इनसाइट्स आपको किधर नहीं मिलेंगे, ना कोई पॉडकास्ट में, ना कोई न्यूज़लेटर में, ना कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल में. तो इसलिए आई थिंक द बेस्ट इंसाइटफुल वे ऑफ गेटिंग insights is just by talking to as many people as possible, which is also one of the key roles of researcher. The next third option is coaching, which is tutoring, right? अगर आप 11th या 12th के बच्चों को पढ़ा सकते हो, या तो फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा सकते हो, या इवन इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ा सकते हो बिकॉज आपने इंटर भी क्लियर किया है. That is also one way of earning additional source of income. Let me tell you very simple examples. Like let's say take an example of the famous faculty JK Shah sir, right? He also started teaching to CA final students when he was doing his articleship, when he was just clearing his CA intermediate, and he was so good at teaching that उनको ये realize हुआ कि teaching is their full time passion. Teaching का main purpose ये कि आपको समझ आ जाएगा कि आप अच्छे टीचर हो या नहीं हो. एंड लेट्स से इफ यू आर टीचिंग वन फुल सब्जेक्ट टू पीपल, इवन आप 2 लोगों को पढ़ा रहे हो, यू कैन चार्ज एनीवेयर बिटवीन 4,000 to 5,000 रुपीज पर स्टूडेंट, बिकॉज उनको तो ये सस्ते में मिल रहा है. मार्केट रेट्स 8,000 हो गए, 9,000 हो गए, आप उनको 4-5,000 में दे रहे हो, एंड आप उनको 1-on-1 अटेंशन भी दे रहे हो. सो दैट इज समथिंग विच यू कैन चार्ज अल्टीमेटली. फर्स्ट बैच में नहीं होगा बट सेकंड थर्ड बैच में आप कर सकते हो. ये थोड़ा पार्ट टाइम है बट इसमें थोड़ा एफर्ट जाएगा. इसमें अगर आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो देन यू कैन परस्यू दिस एज अ साइड गिग, बट इसमें एफर्ट का गेम है. मतलब इसमें ऐसा है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा बिकॉज टीचिंग वन सब्जेक्ट इज लाइक फुल टाइम एफर्ट. बट अगर आप 11th या 12th का सब्जेक्ट पढ़ाओगे जिसमें करिकुलम थोड़ा कम है या तो सिलेबस कम है, तो आप वो भी एक उठा सकते हो इफ यू आर पैशनेट अबाउट टीचिंग. दिस इज द थर्ड ऑप्शन. फोर्थ इज एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग, राइट? बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते नहीं आता है. आर्टिकलशिप में अगर आप सीख गए ना ITR कैसे फाइल करना है, जीएसटी रिटर्न्स कैसे फाइल करना है, आप इजीली 1,000 to 2,000 रुपीज पर क्लाइंट चार्ज कर सकते हो. एंड आप 10-15 क्लाइंट्स ऐसे ही मिल सकते हैं आपको कि आप कोल्ड रीच आउट करो, आप उनको बोलो कि मैं आपको 1,000 रुपए में आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूँ. ट्रस्ट मी, मैंने रिटर्न्स फाइल किया आर्टिकलशिप में. सैलरीड इंडिविजुअल का रिटर्न फाइल करना इज वेरी वेरी सिंपल इन माय ओपिनियन. उसमें कुछ नहीं करना है, बैंक स्टेटमेंट आएगा, तुमको सिर्फ वो लाइन आइटम्स डालने हैं ITR में एंड वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा. एंड पीपल आर मोर देन हैप्पी टू पे यू अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो बिकॉज उनके लिए सस्ते में काम हो रहा है. एंड यू कैन ऑल्सो गेट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जो ऐसे ITR फाइल करते थे 1,000-2,000 रुपए में एंड दे यूज्ड टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ इनकम. तो ये ITR फाइल करना हो गया, GST रिटर्न्स फाइल करना हो गया, एडवाइजरी देना हो गया ऑन सम इनकम टैक्स मैटर, लिटिगेशन मैटर, ये सब भी आप कर सकते हो पैरेलली, वेयर यू कैन जस्ट लेट्स से रीच आउट टू पीपल एंड टेल देम कि ओके आपको ये करना है. अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ लूप होल इन द सेंस दैट कि आप ये फुल टाइम नहीं कर सकते हो, बट आप सिर्फ ये उनको रीच आउट करके अच्छे से मतलब फटाफट करके इसको क्लोज कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो समथिंग विच पीपल आर डूइंग दीस डेज. दिस वाज नंबर 4. एंड नंबर 5 इज कंटेंट क्रिएशन. इन माय ओपिनियन आई फील दैट कंटेंट क्रिएशन इज वेरी वेरी अंडररेटेड. इसमें क्या होता है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दोगे लेट्स से ऑन लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, आपका एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा. एंड अगर आपका बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो गया, यू नेवर नो दैट यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो. यूट्यूब पे ऑन एन एवरेज 1000 व्यूज के लिए $0.6 मिलता है, विच इज 48 रुपीज, अज्यूमिंग 80 का एवरेज रेट. तो इसमें 50 रुपए 1000 व्यूज के लिए मिलता है. अगर आपको 1 लाख व्यूज आते हैं यूट्यूब पे कभी, तो आपको 5,000 रुपीज मिल जाएंगे. सो डिपेंडिंग ऑन कि अपना कितना ट्रैक्शन है एंड कितने व्यूज आते हैं, उस हिसाब से आपको यूट्यूब इनकम देगा. बट दिस इज नॉट द मेजर सोर्स ऑफ इनकम. मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज ब्रांड डील्स एंड ब्रांड एंडोर्समेंट्स. इन इंडिया, एज पर कलारी कैपिटल्स रिपोर्ट, 88% of the income of a content creator comes through brand endorsements and only 5% of the income of the creator comes through YouTube, which is Google AdSense. तो मेरा पॉइंट है कि अगर आप अच्छे क्रिएटर बन जाओगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स आपको मिल जाएंगे एंड दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू फेच यू गुड अमाउंट ऑफ मनी. अगेन दिस इज कमिंग एट द कैवियट कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में एंड आप कंटेंट वही बना रहे हो जो आप पढ़ाई में या आर्टिकलशिप में सीख रहे हो. इसमें बहुत एफर्ट नहीं डालना है आपको बस वही करना है जिसमें आपको बहुत कम एफर्ट डालना है एंड आपको हाई रिटर्न मिल सकता है. आई हैव अ वेरी सिंपल रूल इन लाइफ विच आई फॉलो. वही चीज़ें करनी है जहाँ पर आपको बहुत मिनिमल एफर्ट डालना है एंड आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा. तो कौन सी चीज़ें जहाँ पे आपको मिनिमल एफर्ट डालना है? आप आर्टिकलशिप टैक्सेशन में कर रहे हो, आपने DT के क्लासेस लगाए, तो आपको पता है कि टैक्सेशन में आप कोई भी कंटेंट बना सकते हो, वो चलने वाला है बिकॉज आपका डे इन एंड डे आउट वही काम है. ये बहुत मिनिमल एफर्ट है. इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा है बिकॉज आपका कंटेंट अगर वायरल हो गया तो आपकी ब्रांड बन सकती है. अगर आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा तो आपको पेमेंट मिल जाएगा बाय लॉट ऑफ दीज ब्रांड्स. अगर आपने बहुत अच्छी रिसर्च की तो आपको कोई कंटेंट क्रिएटर हायर कर लेगा. अगर आपने बहुत सारे अच्छे इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करे तो आपको नए क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे, विच कैन ऑल्सो बी अ सेटअप फॉर योर ओन प्रैक्टिस एज वेल. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आपको पढ़ाई हैम्पर नहीं करनी है, ऐसी चीज़ करनी है जिसमें एफर्ट बहुत कम है, रिटर्न बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम. तो ये वीडियो का पर्पस यही था कि आपको बस समझाना कि कैसे साइड हसल्स लोग कर रहे हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं. एंड ऑल इन ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू build our skill set and ensure that we are monetizing that skill set after a point in time. I hope this video was useful for all of you. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. Let me know in the comment section which is the topic you would want me to make the next video on, and the comment I'll get the most number of likes, I'll try to make the video on that topic itself. Thank you so much for watching this
this video. See you in the next video.